Hi guys, welcome to EncycloHub. In this video, we are discussing about the delta operator in numerical analysis. चलिए शुरू करते हैं. Delta operators in numerical analysis is an finite difference operator to approximate derivatives and analyze sequences. It is particularly useful in numerical differentiations, interpolation, and discrete mathematics. So basically, डेल्टा ऑपरेटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? 3 जगह पे यूज़ किया जाता है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में, इंटरपोलेशन में और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में. यहाँ पे बेसिक जो डेफिनेशन दी गई है कि डेल्टा ऑपरेटर किसको कहते हैं. डेल्टा ऑपरेटर को हम डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं. हम फंक्शन ले रहे हैं, उसका हम डेल्टा निकाल रहे हैं. उसको निकालने के लिए आपको एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करना पड़ेगा, यानी कि एक ज़्यादा वैल्यू में से एग्जिस्टिंग वैल्यू को माइनस करते हैं. तो इस तरीके से डेल्टा निकलता है ना. टाइप्स ऑफ डेल्टा ऑपरेटर्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेल्टा ऑपरेटर्स. फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड, सेकेंड वन इज बैकवर्ड एंड थर्ड वन इज सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर. It look like this one. This is called the forward delta operator, and we find by fx plus h minus fx. Second one is called a backward function. It looks like a opposite of the forward. So in this one we minus fx minus h. This is called a backward difference operator. And the third one, it is called a, this is called central. It looks like this one, delta, and delta fx, del fx equal to fx plus 1 upon 2 minus fx minus 1 by 2. So this is called a central difference operator. Now the properties of the delta operator, first one is linearity, higher order differences, and the relation to derivatives. So in this one that you can see, linearity is me when we multiply the delta, so it multiply with fx. Similarly with gx, right? In higher order derivatives, you can see here when we are differentiating of fx to the power n, then we get this. So actually we can say here this delta n, so here is delta power 1 and here is the delta power n minus 1. So we are plus all the values because here is a multiplication. So when we do this, so we get delta n, which is similar to this one. Actually this is not correct, I am just explaining you so that you can understand. And the third one is relation to the derivatives. The derivatives is first derivative f dash x is equal to delta fx is equal to upon delta x. This is called the derivatives. If we have to find the derivative, so we can find in this way. Applications, so there are the different application where we can apply for these delta operators. First example is given here. So we have given a function which is fx equal to x square, and we are computing the forward difference for the few values. So very simple. So fx we have given which is x square. When we put 0, we find 0. When we put 1, we find 1. We put 2, 4, then 9. Now we are finding the value of forward differences. So forward differences is delta fx. Delta fx is equal to, we know that how to find it, fx plus h minus fx, right? So this is called a delta fx value. So if we have to find the fx0, so in this case we will minus f1 minus f0, right? F1 means that f1 value is, you can see here f1 value is 1, f1 value is 1, and f0 value is
f1 value is 1, f0 value is 0, so value is 1. Again, if we find the value of f1, so the value will be f2 minus f1. f2 value is 4 and f1 value is 1. f2 value is 4 minus 1, which is 3. And very simple way we can create a table which is very simple to find. So we can create x and fx. These are the two values we have. X values are 0, 1, 2 and 3. After putting the value, fx value is 0, 1, 4 and 9, right? Now we are finding the value of delta fx and delta square fx. So in this one we have to minus 1 minus 0, which is 1, 4 minus 1, which is 3, 9 minus 4, which is 5. Now this one values 135, 135, right? Now in the next step we are finding the second difference, forward difference, which is delta square fx. So for the delta square fx we can find the value simply by subtracting the 3 minus 1, which is 2, 5 minus 3, which is 2, and if we find the third one, delta cube fx, so which will be 0. So you can see here at the third difference the value is 0, right? So in this one, since the second forward difference is a constant 2, this confirms that fx is a quadratic. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो ये ज़ीरो हो गई थी, क्योंकि इसमें से ज़ीरो हो गई थी, लेकिन यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट 2 मिल रहा है. क्या मिल रहा है? एक कांस्टेंट 2 मिल रहा है, जो कि ये बताता है कि इसका जो सेकंड डिफरेंस है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये क्या इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं. फर्स्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम उसको ऐसे लिखते हैं, जो कि हमने अभी टेबल में भी देखा कैसे निकालते हैं. माइनस करते हैं सिंपल. सेकेंड वाले को इस तरीके से निकालते हैं, और ज़्यादा अगर है हायर द डेल्टा एन, जो कि बिकम ज़ीरो एट अ सर्टेन स्टेप. जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा ज़ीरो हो गया था. कौन से स्टेप पे? 3 स्टेप पे हमारा ज़ीरो हो गया था. इसको क्या कहते हैं? इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ये डिग्री कहलाती है उसकी, जब आपका जो है एक स्टेप पर ज़ीरो हो जाए, यानी कि अगर इसकी डिग्री पूछी जाए तो 3 आएगी. एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा ऑपरेटर. यहाँ पे एक और डेल्टा ऑपरेटर का एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे हमें एक टेबल दी है जो कि हमारा डेटा है. इस डेटा के बेसिस पर हमको क्या निकालना है? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. अभी देखिए हमने अभी तक पढ़ा था सिंपल डिफरेंस, जो फॉरवर्ड ऑपरेशन हम ये लगा रहे थे, अभी डेल्टा ऑपरेटर लगा रहे थे, है ना. जैसे कि फर्स्ट डिफरेंस हमने लगाया था, सेकंड डिफरेंस. अभी हमने न्यूटन के बारे में पढ़ा ही नहीं था. न्यूटन हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में. इंटरपोलेशन का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि प्रिडिक्शन करना, किसी चीज़ की प्रिडिक्शन करना. देखिए प्रिडिक्शन का मतलब हो गया कि आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगी. अब सपोज करते हैं कि आप ट्रेडिंग करते हैं. ट्रेडिंग करते समय आपकी 2025 में आपने मान लो इन्वेस्ट किया, और आपको पिछला डेटा पता है कि 2024, 2023, 2022, 2021, मतलब बहुत सारा डेटा आपको पता है ऑलरेडी. और आप इस सब डेटा की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ दिस डेटा, यू वांट टू प्रिडिक्ट द 2030 value of your stock, right? So these are the methods where you can find the values of these type of numbers at any year. So ये इस तरीके की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना. तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे कि प्रिडिक्शन हम इसमें सीखेंगे. और अभी यहाँ पे जैसे कि एक फंक्शन दिया है आपको, फंक्शन में रखने पर आपको वैल्यूज़ दिए हैं और फॉरवर्ड हम डिफरेंस निकाल रहे हैं. जैसे कि सबसे पहले हमने काम क्या किया? फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला. जैसे कि हमने अभी सीखा भी था कि माइनस करना रहता है इसको, ये माइनस करके हमने इनको निकाल लिया, है ना.
ऐसे ही इसको इनको माइनस करने पे ये आया, इसको माइनस करने पे ये, और इसको माइनस करने पर ये आया। अब बारी आएगी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला की, जो कि काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ज़ीरो प्लस पी डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो प्लस पी पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स ज़ीरो प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ एक्स ज़ीरो। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको ये जो है, आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलता है। इसको आप याद कर लीजिए, एफ एक्स ज़ीरो पी प्लस डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो प्लस पी पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स ज़ीरो प्लस पी पी माइनस वन पी, ऐसे ही चलता रहेगा, पी पी माइनस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल, फिर डेल्टा फोर, डिफरेंस फोर यहाँ पे आप लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये तो वैल्यूज़ हैं, एफ एक्स ज़ीरो की वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, लेकिन पी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। पी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ इसका यूज़ करते हैं। पी की वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्स माइनस ज़ीरो अपॉन एच। एच का मतलब है डिफरेंस, कि उन नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि एक्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, ओनली वन का। इसको हम एच की वैल्यू देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। एक्स ज़ीरो, हमें एक्स ज़ीरो का मतलब होता है सबसे फर्स्ट वाला। एक्स ज़ीरो जो है वो दिया है आपको 2। यहाँ पे आपका सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन में आपको बोला गया होगा we use the Newton forward formula when the points are given। हाँ, we want to estimate 2.5 using the interpolation। आपको फाइंड करना है 2.5। क्या फाइंड करना है, 2.5। ये तो हो गई x की वैल्यू, और x की वैल्यू के ठीक पीछे जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 2, तो इसको हम लेंगे x0। ठीक है, इसको आप लेंगे x0। तो इस केस में जब आप p निकालेंगे तो p निकालते समय आपका जो रहेगा x का वैल्यू वो रहेगा, क्या रहेगा, 2.5 जो आपको निकालना है। x0 की वैल्यू है 2 और h की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 0.5। नेक्स्ट अब जब आप देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है, और इस p की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। एफ एक्स ज़ीरो प्लस पी डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो प्लस पी पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर, इसमें आपको पूरा वैल्यू रख देना है। जैसे कि हमने इस वैल्यू को रख दिया है। एफ एक्स ज़ीरो की वैल्यू जैसे कि आप देख पाएंगे टेबल में, एफ एक्स ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स ज़ीरो, ये क्योंकि हमने इसको एक्स ज़ीरो माना है तो इसके ठीक सामने वाली वैल्यू जो होगी वो आपकी एफ एक्स ज़ीरो होगी, तो 4 होगी। ठीक है, और 4 रख दिया आपने। p की वैल्यू 0.5 है, जैसे कि हमें पता है, v अभी निकाली थी, और डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो की वैल्यू जो होगी वो होगी 2। डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू वो होगी क्या, 2 होगी, ये वाली, सॉरी, डेल्टा एफ एक्स की डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। फिर आता है p की वैल्यू आ गई 0.5, p की वैल्यू 0.5 माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स ज़ीरो, जो की वैल्यू है 2, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी डेल्टा एफ एक्स ज़ीरो की वैल्यू वो आएगी लास्ट में, वो भी आएगी 2। तो तीनों वैल्यू हम रख चुके हैं, 2 2 2, और फर्स्ट वन जो था 4।
फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 4.25। 4.25 आपकी वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द डेल्टा ऑपरेटर इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा ऑपरेटर इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आप जैसे कि देख पाएंगे कि एफ डैश एक्स यूज द फॉरवर्ड डिफरेंस। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। यहाँ जैसे कि डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं हम, उसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी लिखा था, एच भी लिख सकते हैं या फिर डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, इसका दोनों का मतलब एक ही है। डेल्टा एफ टू, क्योंकि इन्होंने बोला है आपको टू पर निकालना है, तो डेल्टा एफ टू, एच की वैल्यू आपकी दी है 1, और डेल्टा एफ टू की वैल्यू अगर देखी जाए, डेल्टा एफ टू की वैल्यू अगर है तो वो क्या है, डेल्टा एफ टू की वैल्यू के सामने जो वैल्यू है वो दी है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपॉन में 1 इक्वल टू आ गया 4। तो ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेशन ऑफ द डेरिवेटिव यूजिंग द डेल्टा ऑपरेटर। एप्लीकेशन ऑफ द डेल्टा ऑपरेटर इन सॉल्विंग डिफरेंस इक्वेशंस। यहाँ हम एक और चीज़ समझेंगे जिसमें हम डेल्टा ऑपरेटर का यूज़ सॉल्विंग डिफरेंस इक्वेशंस में करने का यूज़ करेंगे। यहाँ जैसे कि लिखा है कि डिफरेंस इक्वेशंस आर द डिस्क्रीट एनालॉग्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड आर वाइडली यूज्ड इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। द डेल्टा ऑपरेटर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको कुछ जैसे कि दिया है, आपको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन दिया है, ये फर्स्ट ऑर्डर है आपकी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन इक्वल टू होता है टू टू द पावर एन। दिस इज कॉल्ड अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद एन इनिशियल कंडीशन वाई जीरो। ये आपको गिवन दिया है कि इनिशियल कंडीशन यानी कि वाई जीरो की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर जीरो रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, डेटा ऑपरेटर निकाल रहे हैं। डेल्टा ऑपरेटर निकालने के लिए जैसे कि आपको पता है कि डेल्टा वाई एन इज इक्वल टू ये होता है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई एन है, तो 2 की पावर एन। तो डेल्टा वाई एन इक्वल टू 2 टू दी पावर एन। अब हम क्या करेंगे, इसका समीशन निकालेंगे। समीशन निकालने के लिए जो फाइनली आपको जो फॉर्मूला मिलेगा, सो इसको हम फिर से लिखेंगे, वाई एन इज इक्वल टू वाई ज़ीरो प्लस summation of k to the power 0 to n minus 1 to power k। ये देखिए बेटर है कि आप इसको याद कर लें, क्योंकि इसमें कोई ऐसा अपने को प्रूफ के लिए तो पूछा जाता नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं कि वाई एन की वैल्यू जो होती है वो 2 टू द पावर एन के इक्वल होती है। वाई एन की वैल्यू 2 टू द पावर एन के इक्वल होती है। तो जैसे कि अगर इसमें हम रख के भी देखेंगे तो वाई ज़ीरो की वैल्यू तो 2 की पावर 0, और वाई टू दी पावर 1 तो 2 टू दी पावर 1, एंड वाई टू दी पावर 2 तो 2 टू दी पावर 2, दिस इज इक्वल टू 1 2 एंड 4। तो यहाँ जो है आपको वैल्यूज़ करेक्ट मिलने लगेंगी। फिर आते हैं सेकंड डिफरेंस के लिए। तो सेकंड डिफरेंस में भी आपको याद कर लेना है। याद करने के लिए सबसे पहले तो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये वाली, कि सेकंड डिफरेंस एक्चुअल में दिखता कैसे है। तो सेकंड डिफरेंस ऐसा है कि n प्लस टू, देखिए n प्लस वन तो हमारा पुराना वाला था फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस में आपको n प्लस टू लेना है, माइनस थ्री वाई एन प्लस वन प्लस टू वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारी इनिशियल कंडीशन हम ले रहे हैं वाई जीरो इक्वल टू वन और वाई वन इक्वल टू टू। इन दोनों कंडीशन में आप वैल्यू रखेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, और फाइनली इनको सॉल्व करने के बाद आपको, जैसे कि इसमें हमारे जो है इसका डेल्टा लिया है ना, डेल्टा लेने के लिए सबसे पहले ये जो टू है, अगर हम इसका डेल्टा लेंगे तो डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा और वाई एन आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे थ्री लिखा है,
यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 है, डेल्टा के ऊपर आ जाएगा, तो 1 वाई एन प्लस 2 वाई एन इक्वल टू 0। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला मिल जाएगा। और फाइनली हम जब इसको सिंप्लीफाइज करते हैं तो सिंप्लीफाइज करने पर आपको जो है वापस यही मिल जाता है, मतलब एक्चुअल में यही इक्वेशन है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन को हम आर स्क्वायर माइनस 3 NR प्लस 2 इक्वल टू 0, और जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो दो वैल्यूज़ मिलेंगी, r-1 और r, दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमें, फिर r की वैल्यू एक 1 मिल जाएगी और r की वैल्यू एक 2 मिल जाएगी, तो दो वैल्यू मिल जाएंगी। इन दो वैल्यूज़ को आप इसमें रख सकते हैं और फाइनल सॉल्व करने पर आपको जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा वो अगेन यही मिलेगा कि वाई एन इक्वल टू 2n। तो इस तरीके से कुछ रिलेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का। तो बेसिकली आप इसको याद रख सकते हैं, मेन कंडीशन हमारी ये है। और बाकी अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें तो और भी दे सकते हैं, या फिर कुछ और दूसरी चीज़ जानना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, आप हमारे से नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऑपरेटर के साथ।